ମୁଁ ସୁରେଶ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି ଆପଣଙ୍କର ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଫିଟର କ୍ଲାसेसକୁ। ତ ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ବହୁତ ସାରା କ୍ଲାସ୍ ନେଇସାରିଛେ, ଆମର ବହୁତ ସାରା କ୍ଲାସ୍ ହେଇସାରିଛି। ତ ଆଜି ଗୋଟେ ତୁମ ପାଇଁ ନୂଆ ଟପିକ୍ ଗୋଟେ ନେଇକି ଆସିଛି, ଯେଉଁଟାକି ଆମ ନିମି ପାଟର୍ନରୁ ଆସିଛି। ବେସିକାଲି ମୁଁ ସବୁବେଳେ ନିମି ପାଟର୍ନକୁ ଫୋକସ୍ କରେ, ଆଉ ନିମି ପାଟର୍ନ ଅନୁସାରେ ମୁଁ ତୁମକୁ କ୍ଲାସ୍ ଦିଏ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ଯିବା ସେ ଟପିକ୍ ଉପରକୁ। ତ ଯେତେବେଳେ ଆମେ କୌଣସି ଉଡ୍ ୱାର୍କିଂ କରୁଛେ କିମ୍ବା କୌଣସି ସିଟ୍ ମେଟାଲ ୱାର୍କିଂ କରୁଛେ, ଯେକୌଣସି ଆମେ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚରାଲ ୱାର୍କ କରୁଛେ, ସେତେବେଳେ ଆମେ କୌଣସି ଲେଆଉଟ୍ ମାର୍କିଂ କରିବା ପାଇଁ କିମ୍ବା କୌଣସି ଲାଇନ୍ ଡ୍ର କରିବା ପାଇଁ ଆମର ଗୋଟେ ଇନଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟ ଦରକାର ହେଉଛି, ଗୋଟେ ଟୁଲ୍ର ବ୍ୟବହାର ପଡ଼ୁଛି। ତ ସେ ଟୁଲ୍ଟା କ'ଣ ନା ସ୍କ୍ରାଇବର। ସ୍କ୍ରାଇବର ଆମେ କ'ଣ କରୁଛେ ନା, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଉଡ୍ ୱାର୍କିଂ କରୁଛେ, ସିଟ୍ ମେଟାଲ ୱାର୍କିଂ କରୁଛେ କିମ୍ବା ଯେକୌଣସି ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚରାଲ ୱାର୍କ କରୁଛେ, ତ ସେତେବେଳେ ଆମେ ଗୋଟେ ଡ୍ରକୁ ଲାଇନ୍ କରିବା ପାଇଁ, ଗୋଟେ ଲାଇନ୍କୁ ଟାଣିବା ପାଇଁ ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛେ କାରଣ ସ୍କ୍ରାଇବରକୁ। ତ ସ୍କ୍ରାଇବରର ବ୍ୟବହାର ଜାଣିବା ପ୍ରଥମେ। ତ ସ୍କ୍ରାଇବର ଆମେ କେଉଁ ଜାଗାରେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛେ? ସ୍କ୍ରାଇବର ୟୁଜ୍ ଇନ୍ ଲେଆଉଟ୍ ୱାର୍କ ଇଜ୍ ନେସେସରି ଟୁ ସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଲାଇନ୍ ଟୁ ଇଣ୍ଡିକେଟ୍ ଦ ଡାଇମେନସନ୍ ଅଫ୍ ଦ ୱାର୍କପିସ୍ ଟୁ ବି ଫିଲ୍ଡ ଓର୍ ମେସିନ୍। ଆମେ ବେସିକାଲି ସ୍କ୍ରାଇବର କେଉଁ ଜାଗାରେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛେ ନା ୱାର୍କପିସ୍ ଉପରେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛେ ଏବଂ ମେସିନ୍ ହୋଇଥିବା ସର୍ଫେସ୍ ଉପରେ ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛେ। ତ ଯଦି ଆମେ କୌଣସି ସ୍କ୍ରାଇବରକୁ ଯଦି ଆମେ କୌଣସି ୱାର୍କପିସ୍ ଉପରେ ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛେ କିମ୍ବା କୌଣସି ମେସିନ୍ ସର୍ଫେସ୍ ଉପରେ ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛେ, ତ ତାହେଲେ ସ୍କ୍ରାଇବରଟା ସେ ୱାର୍କପିସେସ୍ ଅପେକ୍ଷା, ସେ ମେସିନ୍ ହୋଇଥିବା ସର୍ଫେସ୍ ଅପେକ୍ଷା ବେଶୀ ହାର୍ଡ଼ ଥିବ, ଯାହାଫଳରେ କି ସେ ମେଟାଲକୁ କାଟି ଗୋଟେ ଡ୍ର ଲାଇନ୍ ଟାଣିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ସହାୟକ ହୋଇପାରୁଛି। ତମେ ଜାଣିବା ସେ ସ୍କ୍ରାଇବରଟା କେଉଁ ମେଟେରିଆଲରେ ତିଆରି। ତ ସ୍କ୍ରାଇବରଟା ବେସିକାଲି ଆମର ହାଇ କାର୍ବନ ଷ୍ଟିଲ୍ରେ ତିଆରି। ୟାକୁ ହାର୍ଡେନ୍ ଆଣ୍ଡ ଟେମ୍ପର କରାଯାଇଥାଏ। ସ୍କ୍ରାଇବରଟା କେଉଁ ମେଟାଲ ତିଆରି ନା ହାଇ କାର୍ବନ ଷ୍ଟିଲ୍ରେ ତିଆରି। ୟାକୁ ହାର୍ଡେନ୍ ଆଣ୍ଡ ଟେମ୍ପର କରାଯାଇଥାଏ। ତ ବେସିକାଲି ଆମେ ଜାଣିଛେ ଯେ ସ୍କ୍ରାଇବର କେତେ ଟାଇପ୍ର। ବେସିକାଲି ସ୍କ୍ରାଇବର ଆମର ଆଭେଲେବଲ୍ ରହୁଛି ନା କେତେ ଟାଇପ୍ର ନା 2 ଟାଇପ୍ର ଆକର୍ଡ଼ିଂ ଟୁ ସେପ୍ ଆଣ୍ଡ ସାଇଜ୍। ଗୋଟେ ହେଲା ପ୍ଲେନ୍ ସ୍କ୍ରାଇବର, ଯେଉଁଟାକି ଆମ କମନଲି ୟୁଜ୍ ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ସ୍କ୍ରାଇବର, ଯେଉଁଟାକି ଆମ ମୋଷ୍ଟଲି ୱାର୍କସପ୍ରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। ତ ଏ 2 ଟାଇପ୍ର ଆମର ସ୍କ୍ରାଇବର ବେସିକାଲି ବ୍ୟବହାର କରୁଛେ ଆମେ କେଉଁଠି ନା ୱାର୍କସପ୍ରେ ହେଲା, ଜେନେରାଲ ପର୍ପଜ୍ରେ ହେଲା। ତ ଦେଖିବା ଆକ୍ଚୁଆଲି ସ୍କ୍ରାଇବର କ'ଣ, ତା ପାର୍ଟ ସବୁ କ'ଣ କ'ଣ ଅଛି। ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ସ୍କ୍ରାଇବର, ତୁମେ ଦେଖିପାରୁଥିବ ସ୍କ୍ରିନ୍ ଉପରେ। ଏଇଟା ହେଉଛି ସ୍କ୍ରାଇବର, ୟାକୁ ବଡି କୁହାଯାଏ। ୟାକୁ ଟିପ୍ ଓର୍ ପଏଣ୍ଟ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଯେଉଁଟା ପଏଣ୍ଟ ଟାଇପ୍ର ହୋଇଥାଏ ତାକୁ ଟିପ୍ ଓର୍ ପଏଣ୍ଟ କୁହାଯାଏ। ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ଏଙ୍ଗେଲ୍ ଟିପ୍, ଯେଉଁଟାକି ଆମର ଏଙ୍ଗେଲ୍ ଟାଇପ୍ର ଥାଏ, ଗୋଟେ 90 ଡିଗ୍ରୀ ଏଙ୍ଗେଲରେ ଥାଏ, ତାକୁ ଏଙ୍ଗେଲ୍ ଟିପ୍ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଏଇଟା କେଉଁ ମେଟାଲ ତିଆରି ଆମର? ଏ ସ୍କ୍ରାଇବରଟା ଆମର ହେଉଛି ହାଇ କାର୍ବନ ଷ୍ଟିଲ୍ରେ ତିଆରି। ବୁଝିପାରିଲ ସମସ୍ତେ? ଏଇଟା ତା'ର ପାର୍ଟସ୍, ଗୋଟେ ସ୍କ୍ରାଇବର ପାର୍ଟସ୍ ହେଉଛି ଏଇଟା। ବୁଝିଲା ସମସ୍ତଙ୍କୁ? ତାପରେ ଆମେ ଯିବା, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଗୋଟେ ଜବ୍ ସର୍ଫେସ୍ ଉପରେ କିମ୍ବା ଯେକୌଣସି ଆମେ ଡ୍ର ସ୍କ୍ରାଇବିଂ କରୁଛେ, ଗୋଟେ ଲେଆଉଟ୍ ମାର୍କିଂ କରୁଛେ, ତ ସେତେବେଳେ ସ୍କ୍ରାଇବରର ବଟମ୍ ସର୍ଫେସ୍ ଏବଂ ଜବ୍ର ଟପ୍ ସର୍ଫେସ୍, ସ୍କ୍ରାଇବରର ବଟମ୍ ସର୍ଫେସ୍ ଏବଂ ଜବ୍ର ଟପ୍ ସର୍ଫେସ୍ର ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁ କୋଣ ଆମର ଗୋଟେ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ, ଯେଉଁ ଜେନେରେଟ୍ ହୁଏ, ତା'ର କେତେ ଏଙ୍ଗେଲ୍ ରହିବା ଦରକାର ନା 60 ଡିଗ୍ରୀ ରହିବା ଦରକାର। ଯେଉଁ ଆମ ଜବ୍ର ଟପ୍ ସର୍ଫେସ୍ ଏବଂ ସ୍କ୍ରାଇବରର ବଟମ୍ ସର୍ଫେସ୍ ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁ ଗ୍ୟାପ୍ଟା ରୁହେ, ତ ସେ ଗ୍ୟାପ୍ର 60 ଡିଗ୍ରୀ ପରିମାଣ ରହିଥାଏ। ତାପରେ ଦେଖିବା, ଆମେ ଯେତେବେଳେ ସ୍କ୍ରାଇବର ବ୍ୟବହାର କରୁଛେ, ତ ସେଇଟା ନିହାତି ସାର୍ପ ହୋଇଥିବା ଦରକାର ଏବଂ ପଏଣ୍ଟେଡ଼ ହୋଇଥିବା ଦରକାର, ଯାହାଫଳରେ କି ଆମେ ଗୋଟିଏ ଜବ୍ ଉପରେ କିମ୍ବା ମେସିନ୍ ସର୍ଫେସ୍ ଉପରେ ଆମେ ଗୋଟେ କୌଣସି ଲାଇନ୍ ଡ୍ର କରିପାରୁଛେ। ବୁଝିଲା ସମସ୍ତଙ୍କୁ? ତ ତାପରେ ଆମେ ଯିବା ଡିଭାଇଡର। ତମେ ସମସ୍ତେ ଦେଖିଥିବ ସ୍କୁଲରେ ପଢ଼ିଲା ବେଳେ କିମ୍ବା କଲେଜରେ ପଢ଼ିଲା ବେଳେ ଗୋଟେ ଜମେଟ୍ରି ବକ୍ସ ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ଡିଭାଇଡର ବି ଥାଏ। ସମସ୍ତେ ଦେଖିଥିବ, 2ଟା ପଏଣ୍ଟ ଥିବ, ସାର୍ପ ପଏଣ୍ଟ ଥିବ, ତାକୁ ଡିଭାଇଡେଡ଼ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ସେହିପରି ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଫିଟର ୱାର୍କସପ୍ରେ କୌଣସି କାମକୁ ଆମେ କରୁଛେ, ଲେଆଉଟ୍ ୱାର୍କିଂ କରୁଛେ ବା କୌଣସି ସାର୍କିଲ୍କୁ ଡ୍ର କରୁଛେ କିମ୍ବା କୌଣସି ଆର୍କୁ ଡ୍ର କରୁଛେ କିମ୍ବା କୌଣସି ଡାଇମେନସନ୍କୁ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ କରୁଛେ, ତ ତାହେଲେ ଆମର ଡିଭାଇଡର ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକତା
पड़ुचे। डिवाइडर व्यवहार कौटी करा जाए ना, डिवाइडर आर यूज्ड फॉर स्क्राइब सर्किल्स, आर्क एंड ट्रांसफरिंग डायमेंशन, स्टेपिंग ऑफ डिस्टेंस। बुझेगा समस्त को ना डिवाइडरटा कौ जगह व्यवहार करा ना गोटे सर्किल को ड्र करने, गोटे आर्क को ड्र करने एवं गोटे डायमेंशन को ट्रांसफर करने आम डिवाइडर व्यवहार करुचे। तो बेसिकली आमर डिवाइडरटा केते टाइप रो अकॉर्डिंग टू जॉइंट टू टाइप्स रो, गोटे फ्रेम जॉइंट आ गोटे स्प्रिंग जॉइंट। फ्रेम जॉइंट क्या कहुए, जोटा कि आम नॉर्मल सिंपल जोटा मुझे कहली तुम स्कूल रे कि कॉलेज रे पढ़ला बेले जिते बेले तुम गोटे डिवाइडर व्यवहार करुच सेते बेले कौन होना जो डिवाइडर तुम व्यवहार करुच ताकू फ्रेम जॉइंट डिवाइडर बोली कहुए। आ गोटे स्प्रिंग जॉइंट डिवाइडर। स्प्रिंग जॉइंट डिवाइडर कौटा जिते बड़े आम फाइन आडजस्टमेंट करुचे कौन से डायमेंशन को आम फाइनली भाव आडजस्टमेंट करुचे सेते बेले कौन कहूँ ना आमर कौन सी डायमेंशन जमती माने स्टेप चेंज न हो कि कौन से आकुरेट भाव रहू, तो से जगह आम स्प्रिंग जॉइंट टाइप रो डिवाइडर व्यवहार करुचे। तो से डिवाइडर देखा केमती चलो देखा। तो तापर देखा यहाँ हूँ आमर डिवाइडर कौन सी स्केल किंबा स्टील रूल उपर जदि आम गोटे डायमेंशन को लेकिन जदि आम कौन सी ऑब्जेक्ट उपर ताकू ट्रांसफर कर दूचे तो तापर क्या व्यवहार द्वारा ना डिवाइडर व्यवहार द्वारा। गोटे डिवाइडर व्यवहार द्वारा आम कौन सी डायमेंशन को स्टील रूल उपर रखिकी जहाँ डायमेंशन आम होची ताकू गोटे ऑब्जेक्ट उपर ट्रांसफर कर पारछे किंबा गोटे ड्र कर पारछे। बुझीला, चलून जानिबा गोटे डिवाइडर पार्ट सब कौन कौन अच्छी। तुम देखिपार तुम सामने गोटे डिवाइडर अच्छी। तो फास्ट देख अच्छी आमर पॉइंट अच्छी, प्रथमे पॉइंट अच्छी पॉइंट देखिपार या पॉइंट बोली कहुए। आउ पॉइंट अच्छी पॉइंट पर स्क्राइबर पॉइंट जोटा आम कहुए स्क्राइबर पॉइंट अच्छी। तो तापर हार्ड एंड स्टील लेग्स अच्छी, दुईटा लेग्स अच्छी, आउ फाइन आडजस्टमेंट नट अच्छी। आ गोटे पेग बोली कहुए जोटा माने ऊपर पर्सनटा रहा तो ताको पेग बोली कहुए जोटा ग्रिपिंग पावर व्यवहार कराए। और जो रिंग टाइप रहा ताको स्प्रिंग बोली कहुए। हार्ड एंड टेम्परेट स्प्रिंग बोली कहुए जहाँद्वारा कि आम फाइन आडजस्टमेंट करें गोटे डायमेंशन उपरे। तो बुझीवाला समस्ते। तो गोटे डिवाइडर लेंथ केते आम केमती जानिबा ना तार जो रोची फुलक्रम रोचे जॉइंट रोचे से टिप और पॉइंट पर्यंत जो डिस्टेंसटा तार डिवाइडर लेंथ होची सेटा। तो गोटे डिवाइडर आम केते केते रेंज भितर पाई पारुचे ना गोटे 50 mm टू 200 mm लेंथ भितर आम पाई पारुचे ना केते भितर 50 mm टू 200 mm मध्य आम डिवाइडर पाई पारुचे। तापर जानिबा जे आम गोटे डिवाइडर को स्पेसिफाई केमती करवा। गोटे डिवाइडर को आम स्पेसिफाई केमती करवा जिते बड़े आम विभिन्न रेंज आमर व्यवहार पड़ुचे कौन डिवाइडर विभिन्न रेंज जमती तुमको कहली जे 50 mm टू 200 mm भितर रही। तो से गोटे डिवाइडर आम स्पेसिफाई केमती करवा ना ता टाइप ऑफ जॉइंट माने को जॉइंट को टाइप रो जॉइंट एवं तार लेंथ रो रेंज केते। बुझेला समस्त को तार जॉइंट को टाइप रो जॉइंट सेटा आउ तार लेंथ केते। तो ये दुईटा जिनस को लेकिन आम गोटे डिवाइडर स्पेसिफाई करि पारुचे। जो आम डिवाइडरटा व्यवहार करुचे ना कौ जगह कौन सी मार्किंग कला टाइम रे कौन सी लेआउट कला टाइम रे जे कौन सी सर्किल ड्र कला टाइम रे ता पॉइंटटा गोटे फिक्स पोजीशन उपरे रहिबा निहाती आवश्यक ना नहीं। गोटे पॉइंटटा को आम कोठी रखिबा ना गोटे फिक्स पोजीशन रे रखिबा निहाती दरकार। कौ जगह रखिबा ना गोटे पिक पंच होइथवा करेक्ट लोकेशन डिवाइडर पॉइंट पिक पंच 30 डिग्री यूज जिते आम कौन सी डिवाइडर पॉइंटा को लोकेशन करुचे ना से आम पिक पंच 30 डिग्री वाला व्यवहार करुचे। से जगह आम जदि डिवाइडर पॉइंटा को व्यवहार करुचे तार डायमेंशन किंबा तार
कौन सी लेग गुड़ाक ट्रांसफर हो पारे कि मिस यूज हो पार ना। तो से आमको गोटे प्रिक पंचर 30 डिग्री वाला प्रिक पंचर निहाती गोटे होल दरकार, लोकेशन होल निहाती दरकार। तापर आम जा डाटुम लाइन किंबा डाटुम सरफेस। डाटुम क्या कहुए तो मैंने जानी जे जिते आम लेआउट मार्किंग करूँ तो से डाटुम इज ए रेफरेंस सरफेस line or point. The datum line may be an edge or central line depending on the shape of the work. बुझीपाल समस्ते। तो डाटुम लाइन एक्चुअली कौन? डाटुम इज ए रेफरेंस सरफेस एंड लाइन और पॉइंट। बुझीपाल समस्ते। डाटुम हूँ गोटे रेफरेंस सरफेस, गोटे लाइन किंबा गोटे पॉइंट। एक्चुअली डाटुम लाइन केते टाइप रो समस्ते मन रखि डाटुम लाइन्स बेसिकली 3 टाइप्स रो। गोटे एज डाटुम लाइन, गोटे सेंटर डाटुम लाइन, आ गोटे टेम्पलेट मेथड डाटुम लाइन। बुझेगा समस्त को। एज डाटुम लाइन क्या कह जाए जिते बड़े आम कौन सी जॉब उपर गोटे पैरेलल लाइन ड्र करुच ना से प्रथम आमको गोटे बेस लाइन ड्र करा पड़ो निहाती भाव में। जो आम गोटे बेस लाइन ड्र करुचे तापर आम से बेस लाइन को ड्र करके विभिन्न प्रकार सेप्र पैरेलल अनुसार लाइन ड्र कर पार्चे। बुझेगा समस्त को। आ गोटे है सेंटर डाटुम लाइन। सेंटर डाटुम लाइन क्या कह जाए गोटे ओड सेप्र जॉब कि गोटे राउंड सेप्र जॉब कि गोटे ऑकवर्ड सेप्र जॉब को आम मार्किंग करार अच्छे, गोटे मार्किंग लाइन ड्र करार अच्छे। ताले केमती करवा सेटा तो आम एज डाटुम लाइन हो पार ना। तो तेणुक आमको सेंटर डाटुम लाइन व्यवहार करने को पड़ो। केमती? तो प्रथम आम से राउंड जॉब किंबा ऑकवर्ड शेप जॉब को प्रथम तार सेंटर बाहर करने पड़ो। तो से सेंटर को बाहर कर सारा पर कौन करवा ना, तो से सेंटर को बेस करके आम से सेंटर को बेस करके आम तार ऊपर लाइन आउ तो तल लाइन को लेकिन आम 3 टाइप रो कि 4 टाइप रो कि 5 टाइप रो आम पैरेलल लाइन ड्र करि पारिबा। ए मेथड को आमर सेंटर डाटुम लाइन बोली कह जाए। आ गोटे रहा टेम्पलेट मेथड। टेम्पलेट मेथड क्या कह जाए? टेम्पलेट मेथड आम क्या कह जाए ना जिते बड़े आम कौन सी जॉब को बिना मार्किंग रे तैयारी करि पारुछे ताकू टेम्पलेट मेथड बोली कह जाए। जमती कि कौन सी डुप्लिकेट पार्ट गोटे मुझे आनिकी गोटे जॉब उपर रखिकी ताकू से सेप्र लाइन को ड्र करके जदि मु से सेप्र गोटे जॉब आकुरेटली बन पार्ली तो सही जो मेथड प्रोसेस को कौन कह जाए ना टेम्पलेट मेथड प्रोसेस किंबा टेम्पलेट मेथड बोली कह जाए। समस्ते बुझीपार। तो तापर आम जा कालीपर। कालीपर क्या कह जाए? कालीपर हूँ गोटे इनडायरेक्ट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट फॉर यूज स्टील रूल। आमर कालीपर हूँ गोटे इनडायरेक्ट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट यूज्ड फॉर स्टील रूल। जिते आम कौन सी थिकनेस जॉब कौन सी मार्किंग डिस्टेंस करुचे डिस्टेंस मार्किंग करते आमर कालीपर व्यवहार पड़ुची। सेटा गोटे इनडायरेक्ट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट बोली कह जाए। तो बेसिकली जो आम कालीपर व्यवहार करचे तो क्या बेस करके आम कालीपर व्यवहार करचे ना स्टील रूल को बेस करके आम कालीपर व्यवहार करें। तो कालीपर एक्चुअली केते टाइप रो ना कालीपर एक्चुअली 2 टाइप्स रो अकॉर्डिंग टू जॉइंट। गोटे है फ्रेम जॉइंट कालीपर आ गोटे स्प्रिंग जॉइंट कालीपर। कालीपर देखा केमती यह कालीपर बोली कह जाए। जेनी कालीपर भी अच्छी आमर आउटसाइड कालीपर आउ इनसाइड कालीपर भी आमर अच्छी। या ओडले कालीपर किंबा जेनी कालीपर बोली कह जाए। ए दुईटा को आउ ए दुईटा को आमर आउटसाइड कालीपर आउ या इनसाइड कालीपर बोली कह जाए। आउटसाइड कालीपर काम कौन से आउटसाइड डायमेंशन को चेक करिवो, आउटसाइड थिकनेस को चेक करिवो। आउ इनसाइड कालीपर काम कौन है ना गोटे इनसाइड आउ इनसाइड थिकनेस को चेक करवा काम कहार ना इनसाइड कालीपर। बुझीपाल समस्ते। तो अकॉर्डिंग टू लेग मु कहली अकॉर्डिंग टू लेग
कालीपर केते टाइप रो ना टू टाइप्स रो गोटे ला इनसाइड कालीपर आ गोटे ला आउटसाइड कालीपर गोटे ला इनसाइड कालीपर आ गोटे आउटसाइड कालीपर तो कालीपर लिस्ट काउंट केते तार आकुरेसी केते आमे कहा पर डिपेंड करूचे ना स्टील लूप रे डिपेंड करूचे जिते कौन सी इनडायरेक्ट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट आमे व्यवहार करूचे तो गोटे बेस नौचे बेस क्या करा जाए ना स्टील रूल को व्यवहार करा जाए जोटा कि डायरेक्ट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट उपरे ताकू बेस करा जाए आम स्टील रूल लिस्ट काउंट जेते आकुरेसी जेते कि तो गोटे इनसाइड किंबा आउटसाइड कालीपर रो लिस्ट काउंट मते सेते गोटे आउटसाइड कालीपर किंबा गोटे इनसाइड कालीपर आकुरेसी लिस्ट काउंट केते ना 0.5 mm केते 0.5 mm गोटे स्प्रिंग कालीपर एडवांटेज कौन एटा हूँ क्विक सेटिंग क्विक सेटिंग आकुरेट भाव में एवं फाइन एडजस्टमेंट बुझीगला क्या माध्यम ना एडजस्टिंग नट माध्यम तो यहाँ हूँ गोटे स्प्रिंग कालीपर एडवांटेज समस्त को निहाती जाना दरकार तो तापर आम जा जेनी कालीपर क्या कहुए कौन बेसिकाली तुमको कहली जे मु या जेनी कालीपर बोली कहुए ए दुईटा को जेनी कालीपर बोली कहुए ए दुईटा को जेनी कालीपर किंबा ओल्ड लेग कालीपर कहुए कहीं ना या ओल्ड लेग कालीपर कहीं कहगला ना यार गोटे लेग बेंड थाए गोटे लेग बेंड थाए तो से या जेनी कालीपर किंबा यार अन्य नाम ओल्ड लेग कालीपर बोली कहुए बेसिकाली ए दुईटा को जेनी कालीपर किंबा ओल्ड लेग कालीपर बोली कहुए तापर जीवा जेनी कालीपर हाव वन लेग बेंड जेनी कालीपर गोटे लेग बेंड थाए आ गोटे लेग स्ट्रेट थाए जो थे कि आम स्क्राइबरटा जॉइंट होई थाए तो यार लेंथ केते आमे पाउचे यार लेंथ केते रे अवेलेबल मिलुचे हमरो ना 150 mm 200 mm 250 mm एवं 300 mm भितर आमर गोटे जेनी कालीपर मिल पारुचे यही लेंथ मध्य आमे गोटे जेनी कालीपर पाई पारिबा बेसिकली जेनी कालीपर को जगह व्यवहार कर तुमको देखा फिगर को लेकिन देखा प्रैक्टिकल बेसिस देखा जे आमर गोटे जेनी कालीपर को जगह व्यवहार करा जाउची बेसिकली जेनी कालीपर को जगह व्यवहार कर ना मार्किंग पैरेलल टू द इनसाइड एंड आउटसाइड एज ना को जगह व्यवहार कर गोटे एज रू नहीं गोटे एज को बेस करके इनसाइड किंबा आउटसाइड पैरेलल लाइन गोटे ड्र करा जाई पारुची कहा द्वारा ना जेनी कालीपर द्वारा फाइंडिंग द सेंटर ऑफ राउंड बार्स गोटे राउंड बार रो सेंटर को आमे बहुत सहजरे कहा द्वारा फाइंड करि पारुचे ना जेनी कालीपर द्वारा गोटे राउंड जॉब रो राउंड सरफेस रो सेंटर बाहर करिया पे व्यवहार करि पारुचे कहा ना जेनी कालीपर द्वारा बुझिला समस्त को यही भाव में गोटे जेनी कालीपर को गोटे जॉब रो एज को गोटे जॉब रो एज को बेस करके गोटे पैरेलल लाइन ड्र कर पारछे इनसाइड किंबा आउटसाइड माध्यम रे तो तुम निजे देखि पारुछ यही भाव में गोटे जेनी कालीपर द्वारा आमे गोटे जॉब को ड्र करी गोटे जॉब को पैरेलल लाइन ड्र करी पारुचे कहा द्वारा ना गोटे जेनी कालीपर द्वारा गोटे एज को बेस करके गोटे जॉब रो तो आम गोटे पैरेलल लाइन ड्र करी पारुची तुम देखि पारिबो एटा हूँ आमर गोटे पैरेलल लाइन कहा द्वारा ना गोटे जेनी कालीपर द्वारा बुझीपाल समस्ते तो तापर जीवा जेनी कालीपर सब अदर नाम कौन कौन अच्छे तापर आम जानिबा जे जेनी कालीपर अदर नेम गुड़ा कौन सब आम जेनी कालीपर को आउ को नाम रे नामित करी पारिबा जेनी कालीपर अदर नेम है हर्मोफ्लोराइड कालीपर बोली कहुए ओल्ड लेग कालीपर कहुए किंबा लेग एंड पॉइंट कालीपर मध्य
କୁହାଯାଇପାରିବ କାହାକୁ ନା ଜେନି କାଲିପରକୁ। ବୁଝିଲା ସମସ୍ତଙ୍କୁ। ତ ତାପରେ ଯିବା ପଞ୍ଚ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ କୌଣସି ଜବ୍କୁ ମାର୍କିଂ କରୁଛେ, ମାର୍କିଂ କଲା ପରେ ଗୋଟେ ପରମାନେଣ୍ଟ ମାର୍କିଂ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛେ କାହାକୁ ନା ପଞ୍ଚକୁ। କାହିଁକି ନା ଯେତେବେଳେ ଆମେ କୌଣସି ଜବ୍ ଉପରେ ମାର୍କିଂ କରିଦେଉଛେ, ଟେମ୍ପରାରୀ ମାର୍କିଂ କରିଦେଉଛେ, ସେତେବେଳେ କ'ଣ ହେଉଛି ନା ସେଇ ଜବ୍ଟା ଲିଭିଯିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହୁଛି, ଯେଉଁଟାକି ଆମର ଟେମ୍ପରାରୀ ହିସାବରେ ରହିଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ସେଇ ଲାଇନ୍କୁ ଯଦି ଆମେ ପଞ୍ଚ କରିଦେବା ତାହେଲେ ସେଇଟା ପରମାନେଣ୍ଟ ପାଇଁ ରହିଯିବ। ବୁଝିଲା ସମସ୍ତଙ୍କୁ, ସେଇଟା ପରମାନେଣ୍ଟ ପାଇଁ ରହିଯିବ। ଆକ୍ଚୁଆଲି ପଞ୍ଚ ହେଉଛି ଲେ ଆଉଟ୍ ମାର୍କିଂ, ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ପରମାନେଣ୍ଟ ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। ତ ପଞ୍ଚ କେତେ ଟାଇପ୍ର ନା ବେସିକାଲି ପଞ୍ଚ 3 ଟାଇପ୍ସର। ସେସବୁ କ'ଣ? ପଞ୍ଚ ଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ପ୍ରିକ୍ ପଞ୍ଚ, ଯେଉଁଟାକି ଆମର 30 ଡିଗ୍ରୀ ଏଙ୍ଗେଲ୍ ୟୁଜ୍ଡ ଫର୍ ଡିଭାଇଡ଼ିଂ ପଏଣ୍ଟ। ପ୍ରିକ୍ ପଞ୍ଚ ହେଉଛି ଆମର 30 ଡିଗ୍ରୀର, ତା ପଏଣ୍ଟଟା 30 ଡିଗ୍ରୀ, ଯେଉଁଟାକି ଆମର ଡିଭାଇଡର ପଏଣ୍ଟକୁ ସ୍ଥାନ ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ଡଟ୍ ପଞ୍ଚ। ଡଟ୍ ପଞ୍ଚ କେଉଁଟା? ଡଟ୍ ପଞ୍ଚର ପଏଣ୍ଟ ଏଙ୍ଗେଲ୍ କେତେ ନା 60 ଡିଗ୍ରୀ, ଯେଉଁଟା ଆମର ୱିଟନେସ୍ ମାର୍କ ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଛି। ୱିଟନେସ୍ ମାର୍କ ମାନେ ସାକ୍ଷୀ ମାର୍କ ଯେଉଁଟା ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ୱିଟନେସ୍ ମାର୍କ ହେଲା ସାକ୍ଷୀ ମାର୍କ। ବୁଝିଲା। ଆଉ ଗୋଟେ ପଞ୍ଚ ହେଲା ସେଣ୍ଟର ପଞ୍ଚ। ସେଣ୍ଟର ପଞ୍ଚର ପଏଣ୍ଟ ଏଙ୍ଗେଲ୍ କେତେ ନା 90 ଡିଗ୍ରୀ। ସେଣ୍ଟର ପଞ୍ଚର ଏଙ୍ଗେଲ୍ ନା 90 ଡିଗ୍ରୀ। ତା'ର କାମ କେଉଁ ଜାଗାରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ? ଆମର ସେଣ୍ଟର ପଞ୍ଚଟା ଆମର କେଉଁ ଜାଗାରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ ନା ସେଟିଂ ଦ ଡ୍ରିଲ୍ ପଏଣ୍ଟ। ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ଜବ୍କୁ ଡ୍ରିଲିଂ କରୁଛେ, ଡ୍ରିଲିଂ କଲାବେଳେ ଯଦି ଆମେ ସେଇ ଜାଗାରେ ପଞ୍ଚ ନ କରିଥିବା କୌଣସି ଜବ୍ ଉପରେ, କୌଣସି ୱାର୍କପିସ୍ ଉପରେ, ସେତେବେଳେ କ'ଣ ହୁଏ ନା ସେ ଡ୍ରିଲ୍ଟା ସ୍ଲିପ୍ ହେଇଯାଏ। ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ମାନେ ଆକ୍ଚୁଆଲ୍ ପୋଜିସନ୍ ଯେଉଁଠି ଆମେ ଡ୍ରିଲିଂ କରିବା କଥା ସେ ଜାଗାରେ ଡ୍ରିଲିଂ ନ ହେଇକି ସେଇଟା ସ୍ଲିପ୍ ହେଇଯାଏ, ତା ପ୍ଲେସ୍ଟା ଚେଞ୍ଜ ହେଇଯାଏ। ତ ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ ସେଇ ଜିନିଷକୁ ଆଭଏଡ଼୍ କରିବା ପାଇଁ କ'ଣ କରୁ ଆମେ ନା ସେଇ ଜାଗାରେ ଗୋଟେ ସେଣ୍ଟର ପଞ୍ଚ କରିଦେଉ, ଯାହାଫଳରେ କି ସେ ଯେଉଁ ଡ୍ରିଲ୍ର ପଏଣ୍ଟଟା ଆମର ଠିକ୍ ଭାବରେ ଠିକ୍ ପୋଜିସନ୍ରେ ରହିପାରିବ। ବୁଝିଲା। ସେଇ ଜାଗାରେ ଆମର ସେଣ୍ଟର ପଞ୍ଚ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇପାରୁଛି। ତୁମେ ଦେଖିପାରୁଥିବ ଏଇଟା ହେଉଛି ପଞ୍ଚର ସବୁ କ'ଣ ସବୁ ପାର୍ଟସ୍ ଅଛି। ଟିପ୍ ଅଛି, ୟାକୁ ଟିପ୍ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। କିମ୍ବା ପଏଣ୍ଟ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ବୁଝିଲା। ୟାକୁ ହେଡ୍ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ୟାକୁ ଶ୍ୟାଙ୍କ୍ କିମ୍ବା ବଡି ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ୟାକୁ ଟିପ୍ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ୟାକୁ ହେଡ୍ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ୟାକୁ ଶ୍ୟାଙ୍କ୍ କିମ୍ବା ନଲିଂ ହେଇଥିବା ବଡି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇପାରେ। ବୁଝିଲା ସମସ୍ତଙ୍କୁ। ଆମର ଟିପ୍ର ବେସିକାଲି କାମ କ'ଣ? ଟିପ୍ର କାମ ହେଉଛି ଇଟ୍ ଇଜ୍ ୟୁଜ୍ ଟୁ ମେକ୍ ଏ ମାର୍କ ଇନ୍ ଲୋକେସନ୍ ଦ ସେଣ୍ଟର ଅଫ୍ ଡ୍ରିଲିଂ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଡ୍ରିଲିଂ କରୁଛେ ଗୋଟେ ସେଣ୍ଟର ଲୋକେସନ୍ ଦେବା ପାଇଁ ଆମେ ଟିପ୍କୁ କିମ୍ବା ପଏଣ୍ଟକୁ ବ୍ୟବହାର କରୁଛେ। ଆଉ ହେଡ୍ କେଉଁ ଜାଗାରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଛି ନା ଇଟ୍ ଇଜ୍ ହ୍ୱେର୍ ୟୁ କ୍ୟାନ୍ ଷ୍ଟ୍ରୋକ୍ ୟୁର୍ ହାମର୍। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ହାମରିଂ କରୁଛେ ଗୋଟେ କୌଣସି ପୋଜିସନ୍ ଦେବା ପାଇଁ, ଲୋକେସନ୍ ପୋଜିସନ୍ ଦେବା ପାଇଁ ଆମେ ହାମରିଂ କରିବାକୁ ପଡ଼େ। ତ ସେ ହାମରିଂ କାହା ଉପରେ କରୁନା ହେଡ୍ ଉପରେ ହିଁ କରୁ। ବୁଝିଲା ସମସ୍ତଙ୍କୁ। ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ରହିଲା ଶ୍ୟାଙ୍କ୍। ଶ୍ୟାଙ୍କ୍ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ ନା ଇଟ୍ ଇଜ୍ ହ୍ୱେର୍ ୟୁ କ୍ୟାନ୍ ପ୍ଲେସ୍ ୟୁର୍ ଫିଙ୍ଗର୍ ଟୁ ହୋଲ୍ଡ ୟୁର୍ ପଞ୍ଚ। ତ ବଡି କିମ୍ବା ଶ୍ୟାଙ୍କ୍ର କାମ ହେଉଛି କ'ଣ ନା ତାକୁ ଯେତେବେଳେ ପଞ୍ଚିଂ କରୁଛୁ, ଆମେ ହାମରିଂ କରୁଛୁ, ସେତେବେଳେ ତାକୁ ଠିକ୍ ପୋଜିସନ୍ରେ ଧରିକି ରଖିବା ପାଇଁ ଆମେ ଶ୍ୟାଙ୍କ୍ କିମ୍ବା ନଲିଂ ହେଇଥିବା ବଡିକୁ ଆମେ ଧରୁଛେ କିମ୍ବା ବ୍ୟବହାର କରିପାରୁଛେ। ତାପରେ ଜାଣିବା ଆମ ପଞ୍ଚଟା ବେସିକାଲି କେଉଁ ମେଟେରିଆଲ୍ ତିଆରି। ବେସିକାଲି ପଞ୍ଚଟା ହେଉଛି ଆମର ହାଇ କାର୍ବନ୍ ଷ୍ଟିଲ୍ ତିଆରି। ତାକୁ ହାର୍ଡେଣ୍ଡ ଏବଂ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ କରାଯାଇଥାଏ। ବୁଝିହେଲା। ପଞ୍ଚଟା ବେସିକାଲି କେଉଁ ମେଟେରିଆଲ୍ରେ ତିଆରି? ଆମର ହାଇ କାର୍ବନ୍ ଷ୍ଟିଲ୍। କାହିଁକିନା ଏଇଟା ଆମର ହାଇ କାର୍ବନ୍ ଷ୍ଟିଲ୍ରେ ତିଆରି ହେଲା। ଯେତେବେଳେ ଆମେ କୌଣସି ଜବ୍ ଉପରେ ପଞ୍ଚିଂ କରୁଛେ ନା ସେ ଜବ୍ଟା କଟିଂ ହେଇଯାଉଛି ନା ନାହିଁ, କାହା ଦ୍ୱାରା ନା ପଞ୍ଚ ଦ୍ୱାରା। ତ ସେଥିପାଇଁ ସେଇ ପଞ୍ଚଟା ଆମର ଜବ୍ କିମ୍ବା ୱାର୍କପିସ୍ ଠାରୁ ବେଶୀ ହାର୍ଡ଼ ହେଇଥିବା ନିହାତି ଦରକାର। ସେଥିପାଇଁ ଆମର ପଞ୍ଚଟା କେଉଁ ମେଟେରିଆଲ୍ ତିଆରି ନା ହାଇ କାର୍ବନ୍ ଷ୍ଟିଲ୍ରେ ତିଆରି।
तो जदि तुमको यही क्लासटा भल लगिला ताले मते कमेंट माध्यम निश्चय जनइब। मु तुम पाई एमिति निमी पैटर्न निमी बेसिस अनुसार चैप्टर वाइज तुम पाखे निहाती पहुँचा चेष्टा करी। आउ जो पिला माने मो वीडियो को प्रथम थर नुआ कर देखुच से माने निहाती मो चैनल को सब्सक्राइब लाइक एवं कमेंट करंतु जहाँफल कि तुमको मोर नुआ नुआ वीडियो तुम पाखे पहुँची पार। तो आज एतिकी रहिली, नमस्कार।